Uh, this is a lecture of verb. In this, we are going to discuss about a verb. I will explain all those rules that are important from this lecture. Just understand right now that name of this chapter is verb, which is found in English grammar. Now let's start with the first slide. With the first slide. In this slide, it is talking about what is a verb, types of a verb, as you can see. When I know, even I know, even I know. Here, verb is nothing but this is a action. It shows action and it tells us doing word. Means a word which is explaining that I am doing like that, I am doing this, that. That word is known as verb. And once we have understood about what is a verb, now let's divide it into two parts. We divide it into two parts. First is a helping verb and second is a main verb. Both are compulsory to understand it completely. Don't ignore anything. Wherever there will be ignoring part, I will indicate. So okay, what is the verb? I hope you understood. It's a doing word. A word which is explaining about doing. Just we name that word. Just we name that word as a as a verb. Look, verb is a word, but what should explain about doing thing. Okay, or you can say a word which is showing action. Sometimes you will realize that a word is not showing action. Both types of word we will see. Right now, just understand word which is a doing will be called as a verb. Okay, and further it we divide it into two parts. First we have helping verb and second we have main verb. Both are compulsory. So first let's explore what is let's explore this helping verb. In this helping verb we have modals and then we have primary auxiliary verbs. Yeah, you will see this a lot of times we do have uh, then modals we know what is this can could may should would ought to used to all these are modal verbs. Those main verb. Okay, let me explain in both languages in Hindi and in English. Look, वर्ब को हम दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट में वर्ब एंड सेकेंड में मेन वर्ब. Try to understand modals and main verb are not same. Okay, both are different. So helping verb में ये modal verb आता है, फिर primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb. Here try to understand this primary word is primary, not the secondary, not the tertiary. So primary is a primary. We have to we have to give value this primary auxiliary verbs. This B do have all these are B first verb first form, and all these have three uh, two two verb forms. I will show you. So this modals we are familiar with this as you use in your daily life by using modal verbs. Those are can, could, should, would, used to, need to, dare. All these are words, but we can solve these are more verbs. But what kind of verb?
then the answer would be modal verbs. Okay, you can call it as a this modal verbs as a helping verb. But in helping verb, we have two more things. One is a modal and second is a primary auxiliary verb. Look, primary auxiliary verb will not be modal verb and modal verb will not be a primary auxiliary verb. That's why both are separately. सो इस मॉडल्स पर जो मेन वर्क का कार्य नहीं कर सकते मेन वर्क का मेन वर्ब मेन वर्ब मेन वर्ब का मतलब मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आता है यानी ऐसे वर्ब जो एक्शन एक्शन प्रोड्यूस करे उसे हम मेन वर्ब कह सकते हैं एक्शन प्रोड्यूस you will see here in some in a lot of sentences there are verbs who are not showing action then what to call then we will still call as that verb as a main verb look it is not compulsory if helping verb is coming but main verb is not coming then we can consider the helping verb as a main verb but remember main verb will not come alone okay, without having helping verb. If main verb is coming in a sentence, then you will say that helping verb is also it is automatically coming. Yeah. So this is a rule you can say. If you violate this rule, your structure will be disorder. So remember, helping verb can come alone, but main verb will not come alone. Okay. It will have it will have what helping verb. Clear? So helping verb का modal स्वर यानी मॉडल स्वर को हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं बस इसमें क्या है कि हम मॉडल स्वर के साथ कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते जैसे कैन कैन को हम ना तो कैन के साथ एस का प्रयोग कर सकते हैं और ना उसका सेकेंड फॉर्म बना सकते हैं ना ही उसका थर्ड फॉर्म बना सकते हैं तो ये मेन वर्ब तो इसलिए यहाँ पर एक सेंटेंस है लेट मी हाईलाइट लेट मी हाईलाइट कुछ बातें जो बहुत जरूरी जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करता आप कभी भी कोई भी सेंटेंस देखे जहाँ पर मॉडल्स आ रहा है तो वहां पर वो मॉडल्स मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं कर रहा है और ये एक तरफ से रूल भी कहा जा सकता है यानी मॉडल वर्ब इन वन सेंटेंस और टू सेंटेंस वी कैन एक्सप्लेन इट बाय सेइंग कि सेंटेंसेस में जो मॉडल्स वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह परफॉर्म कर रहा है ना कि मेन वर्ब की तरह जब हम मेन वर्ब कहते हैं तो ये समझ में आता है कि वो एक्शन या स्टेट को परफॉर्म कर रहा है ना तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब कैन परफॉर्म एज अ स्टेट बट नॉट एज अ एक्शन not as a action so try to understand जैसे can could she can write a lot of text this is one example in this sentence we can understand कि जो she can explain है तो इसमें can is not main verb because it's not showing any kind of action that's why so this can is helping verb or we can call it as a modal verb okay modal verb modal okay clear so near the there and used to marginal auxiliary verb जिस तरह का near to dare to used to इस तरह का ये सब भी मॉडल वर्ब है लेकिन हम इसे कुछ इस तरह से पढ़ाते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब नीड एवं डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकता है यहाँ पर देखते हैं कि मॉडल्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद मेन वर्ब आता है जैसे नीड टू यहाँ टू के बाद मेन वर्ब आएगा तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है दैट्स व्हाई हियर इट इज हाईलाइटिंग कि
These are a marginal auxiliary verb where you will see कि main verb is come. This is used to do. Then this is modal एवं adjective दोनों का कार्य कर सकते हैं. This is used to do. We will see with an example. Right now, just understand कि जो verb है it shows doing word and it shows action or a state of something. Then we divide it into two parts. The first part is helping verb and second part is main verb. Then we saw कि जो in helping verb था सो modals आया फिर primary auxiliary verb ये सब था. हमने we explored a modals verb. ये कहता है कि ये this modals verbs cannot perform as a action or as a main verb. We can use it as a helping verb. But there are some words in modals, for example, need, dare, used to. These are known as a marginal auxiliary verb. You will see that to, this is coming after this to, your verb will come. Okay, and then here we have primary auxiliary verbs. Primary auxiliary verbs. Yeah, we use a lot of times whenever our life starts, then you will see that we are using be, do, have. It's a incomplete without a sentence which you do not have this primary auxiliary verb. You will see that the sentence is incomplete. Sentence is a disorder. So remember जो helping verb main verb दोनों का कार्य कर सकता है. ये जैसे be, is, am, are and do, did. Here do ये एक्शन की तरह भी काम करता है जब हम इसे प्रयोग करते हैं. जैसे was, were. इसका तो आई डोंट हैव दैट मच आइडिया बट आई कैन से कि जो डू है ये एक्शन की तरह भी वर्क करता है. हैव इससे इसको यूज करने के बाद ऑफ कोर्स मेन वर्ब विल कम. इसको यूज करने के बाद मेन वर्ब कैन कम, मेन वर्ब कैन नॉट कम. If a main verb is not coming, for example, is, am, or has, so ये अगर main verb is not coming, then we will see here it's a sentence. A sentence is showing state of something. Yeah. So for example, you are farmer. So here are is a primary auxiliary verb, but after are any another verb. For example, main verb is not coming. Still we can say कि यार ये जो सेंटेंस है वो इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है, कोई डूइंग वर्क नहीं है, ना ही सब्जेक्ट. यू कैन से कि ये जो पर्सन है वो किसी प्रकार का कोई डूइंग वर्क नहीं कर रहा है. दैट्स वाई क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है. तो ये सेंटेंस है. इट इज शोइंग दैट कि यू आर समथिंग, यू आर फार्मर. सो हियर यू अंडरस्टूड कि if a member is not coming, then we understand कि जो ये सेंटेंस है उसके पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन मेन वर्ब नहीं है. We understand कि वो sentence is showing a state of a something. That is what we understand when a sentence does not have a main verb but have a primary auxiliary verb. I hope you are understanding gradually. Now let's explore main verb. देखो this will come after. Again, I am emphasizing this main verb. This will not come alone. It will have to come with helping verb. First of all, helping verb will come, then main verb. Okay. So main verb के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं. इसे हम ज्यादा प्रयोग करते हैं to show action, show doing. Okay. Yeah, for example, I have worked. So here, have is helping. And what kind of helping? Primary auxiliary verb you can say. So after have one more verb came, which is a main verb. And here here worked is the main verb which is showing doing word. Clear? Now this slide is done. We have seen and understood
each and everything that are present in this slide. Now, in the next slide, auxiliary verbs. Auxiliary verbs. In the first slide, we saw primary auxiliary verb. It is only coming auxiliary verbs, not primary. It can be, I think, if there is a secondary verb, then how to identify is it a secondary, primary, tertiary? Okay, just it is saying auxiliary verbs. So those verbs which आ, अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। यानी वो वर्ब जो दूसरे वर्ब के साथ प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे 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 इज है, इज के साथ दूसरा वर्ब आ सकता है, या फिर इफ या इफ इज के बाद कोई और वर्ब आ रहा है तब हम उसे इज को हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है, अगर is के बाद another verb is not coming, then what will happen? Then you can't say कि जो is है वो helping verb है ना। यानी after is, if another verb is coming, then we can say कि is a helping verb. But what if there are a lot of sentence in which we say कि is coming but main verb is not coming, then we can consider that is without having main verb, we can consider that as a main verb, not a helping verb. Okay, this was a mm, I think I would say not. This was the main point, right? Remember? Clear. Now, next we have a modal auxiliary verb. All these are auxiliary verb, but modal. We we put it separately from auxiliary verb. Reason is this cannot change its state. uh, I mean, can could not be cans, okay। और जैसे हम प्रयोग करते हैं डू को हम तोड़ते हैं तीन फॉर्म में, उसी प्रकार इस सब को दूसरे फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई वी पुट इट सेपरेटली फ्रॉम ऑक्सिलरी वर्ब। सो कैन को नाम कैंस कर सकते हैं, कुड को नाम दूसरे फॉर्म में इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, बस इन सब का काम है एक फीलिंग्स को बताना, टू एक्सप्लेन फीलिंग्स ऑफ समथिंग, मूड ऑफ समथिंग। ऑल दिस modals work to show feeling, okay, to show emotion, to show mood, to show excitement, to show capacity. So can, could, may, might, shall, will, would, should, must, ought to, all this are your modal auxiliary verb. I know all these are auxiliary verb. Yet, if all these are coming alone, you know, all this do not come alone. Next verb, all these are verb. Once you have used any of these modal verbs, you will use next verb. Next, okay. So after this modal auxiliary verb, remember, remember, after this modal auxiliary verb, your next verb will be V1 or should be V1. Means first verb, not second verb form, not third verb form. After this, I am not saying after helping verb. Yeah, this is helping verb. I am not saying
after primary auxiliary verb. Primary, we have do. Okay, we have do. Uh, okay. इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है. इस सेंटेंस इट इज सेइंग कि can all these are modals वर्ब, so this will not perform as a main verb. ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा. We have an example. First, second, run fast. This can is a modal. We know it is verb. Somebody asked to you, is can verb or not? Your answer should be yes, it is verb. But what kind of verb? Modal auxiliary verb. Modal helping verb. So this is a modal. After this, you can see next verb is coming, which is compulsory, mandatory. I would say mandatory. And if you ask me, where is a helping verb? If a main verb is coming in this sentence, where is a helping verb? You know, this is a helping verb. Since it is a modal, so we can call it as a modal auxiliary verb. In helping verb, there are two parts, modal and primary auxiliary verb. So this modal verb is coming, and we call it as a helping verb. It's your choice if you want to call it as a helping verb or modal auxiliary verb. Okay, you can say main verb is not coming along. Has modal. It has a modal auxiliary verb. Okay. So main thing in this sentence was to identify where is a modal auxiliary verb, where is a helping verb, and where is a main verb. Remember, just after modal auxiliary verb, your next verb should be V verb. Your next verb should be V verb. Clear? Just after, I am saying just after modal auxiliary verb. If after modal auxiliary verb, primary auxiliary verb is coming, then this verb will become V3. This verb will become V3. But condition is primary after modal verb, primary auxiliary verb should come. Then this next verb will be converted into V3 form. V3. Okay. Now in this sentence, you should study English. Should is a modal, it is a helping verb. And after this, one more word is a compulsory, which is a study. It's a verb, and we call it as a main verb. Here, marginal auxiliary verbs are used to need, dare. These are marginal auxiliary verbs. ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है. हम इसे एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ हमें ज़रूरत हो कि इसे मेन वर्ब की तरह परफॉर्म करना चाहिए, तो वी आर एबल टू यूज. ओके. जैसे यूज टू के बाद फर्स्ट नाउन विल कम, वर्ब विल कम. नीडेड के बाद वर्ब विल कम. सो दो सो लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो यूज्ड टू है, इसके बारे में बात हो रहा है, ना कि इसके बाद आने वाले वर्ब के बारे में, जिनका प्रयोग इनका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं और इसे मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं. ये सब वैलिड बात है. जैसा जैसे कुछ एग्जांपल्स आर गिवन in front of you in this slide. I am used to sleeping late at night. Mean
It's showing a past time. यानी मैं let's yeah, I am here. I am is a helping verb. Used to is adjectives. Looping is a gerund, gerund. Okay, next we have I need you. Here, need is a main verb. Here you can see we were talking about modal as a auxiliary verb, but right now this is a modal. This is modal. But why are we calling it as a main verb? Why not a modal auxiliary verb? Reason is it is a working here as a main verb, as a main verb, because after this need, no verb is coming. If verb comes, then we have to use this to. I need to go like that. I need to come to your house. So here, need is a performing as a helping. But in this sentence, it is performing as a main verb because after this didn't come next word. If next word comes, then we will use this too. Next we have you need not come tomorrow. Here this is known as I know there is a no to, but it is known as a direct infinitive. And here this is a helping word. This is a helping word. Next we have a she does not dare to come home late. So this does is performing as a this does is performing as a helping verb, but here dare. This is also verb. So after one more verb is coming, then we can call it as a main verb. And this to come. This is a also verb. One, second, and third. There are three verbs in this only one sentence. So first is helping, second is a main, or third will be infinitive verb, which is a verb which is with a to, and it can be with a to, it can to be with a to. Clear? So this is known as infinitive. Remember, we use dare. Otherwise, if you are using what positive sentence, then here with the dare you will have to use the s dares, she dares to come home late. So this does is valid with the dare. I think it should be valid with this. You need not to come tomorrow. Okay, okay, okay. I dare not enter. I dare not enter his room without permission. Here I know there is a no to. Is it valid? Yeah, it's valid. Is an a verb which is not coming with a to is known as a direct infinitive. If a verb which is coming with a to, we can call it as a infinitive. For example, here you can see this is a with a to and this is a without to. So there's a direct and this indirect infinitive. I dare. Here you can't use is because this I not idea. Or you can write it as a I do not dare enter his room without permission. Or you can this still is a correct idea not enter. You need not come tomorrow. But remember, use this a direct infinitive. Direct infinitive. Direct infinitive. Direct
infinitive. Now next slide. ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ मुख्य पॉइंट्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स. रूल नंबर वन. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता. या वैसा कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है हम उसे मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते. देखिए हमने लेकिन हमने ये भी देखा कि there are some words that are present in modal auxiliary verbs which can be used as a main verb. अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को मेन वर्ब्स के रूप में प्रयोग नहीं करें तो हम उसे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं. जैसे यहाँ I can lift this box. Lift is a performed as a main verb and here this is a helping verb. ये should वर्ब का. दूसरा बात ये है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का B1, B2, B3, ING नहीं होता. ये सिर्फ V1 ही रहता. यानी इसका कोई फॉर्म नहीं होता. ना V1 कह सकते हैं. जैसा है तैसा ही रहे. इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक के रूप में होता है. अर्थात इसका रूप फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता. किसका? मॉडल से. इसका कोई फॉर्म नहीं. ना ING या ना एस. जैसे शी कैन. हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट है. इसके साथ हम एस का प्रयोग करते हैं. लेकिन चूंकि we used modal observer so that's why here it will not change its state. यहाँ भी वैसा ही. यहाँ भी वैसा ही. ओके. एंड दिस इज V1. दिस इज V1. सो यहाँ से हमें ये भी समझना है कि आफ्टर जस्ट आफ्टर द मॉडल ऑब्जर्वर V1 will come just after modal observer. now rule number 3 है out या तथा used के बाद infinitive to plus वर्ब का प्रयोग होता है. जब भी टू आ जाए तो उसके बाद ये हमारा कर्तव्य है कि V1 का प्रयोग करें. V1 का प्रयोग करें. यानी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आउट के बाद टू है. आउट टू यूज टू. ये आउट टू कंप्लीट क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. जस्ट इसके बाद हमारा जो वर्ब है वो V1 होना चाहिए. जस्ट इसके बाद हमारा वर्ब है वो V1 होना चाहिए. ये था रूल नंबर 3. लेकिन इसमें तो देखा गया कि ये जो टू के बाद है V1 है. लेकिन डेयर के साथ नीड के साथ उन सब के साथ शायद ही होगा. शायद. अच्छा. यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को लेट्स एक्सप्लोर. फर्स्ट वी हैव अ कैन एंड कुड. रूल वाइज हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. रूल नंबर 1 है कि कैन का प्रयोग हम जानते हैं कि पावर दिखाने के लिए होता है. हम एबिलिटी देखते हैं, कैपेसिटी देखते हैं. हम पावर को एक्सप्लेन कर सकें in our sentence then we use can. ability का और capacity. जैसे she can explain this chapter. She can go anywhere. यानी ये कैपेसिटी है. वहीं कुड भी यही सब दिखाता है. बट वो पास्ट के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है. पास्ट एबिलिटी पावर कैपेसिटी सेम थिंग. बट इसे हमने इसे लाया इंग्लिश लैंग्वेज में टू यूज it for the past time. Okay. Now let's understand it with an example. First we have he can lift the box. From this sentence we are understanding कि this sentence is talking about कि there is a person who can lift the box. यानी उसके पास कैपेसिटी है. उसके पास 100% कैपेसिटी है कि हाँ he can lift the box. Second example जो कि I could not come yesterday.
यहाँ पर याद रहे कि इफ यू आर यूजिंग could, then you will have to give a hint of a past. जैसे yesterday is a word which is showing past time. Then somebody will understand कि yes, you are talking about कि you could not come yesterday. मतलब अगर हम कोई एक हिंट का प्रयोग ना करें जो पास्ट को दर्शाता हो, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इसलिए इट्स अ कंपलसरी कि हम वो वर्ड हो या कुछ भी ऐसा चीज जिसे हम हिंट की तरह यूज कर सके, उसे हम पास्ट टाइम को दर्शा सकें, ताकि एनीबॉडी कैन इंटरेक्ट। जैसे यहाँ पर यस्टरडे एक वर्ड है जो हिंट की तरह आया है, और ये पास्ट टाइम को दर्शा रहा है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, वो एक सेंटेंस भी हो सकता है, वो एक वर्ड भी हो सकता है। ओके, डन। रूल नंबर 2, कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी किया जा सकता है। हम्म, जहाँ तक as far no as far as without uh, can is used to show ability, capacity. लेकिन rule number 2 is saying कि we can call it as we can use it as a permission. Jesse, you can go now, you can't go, you can't enter. Remember, this note with the can should be together, not as separately, not as separately. So you cannot enter by room. यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है। Can I help you? I am taking permission to help to somebody. Before I help to someone, so I am by saying this, can I help you? I am taking permission from that person. Okay, rule number 3. इसका प्रयोग theoretically possibility. Yeah, possibility is 100% or 50%, 25%, 70%, whatever. हम इसका प्रयोग करके पॉसिबिलिटी को भी दर्शा सकते, दिखा सकते। जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, यहाँ से हमें पॉसिबिलिटी की फीलिंग, वी आर गेटिंग ए फीलिंग ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी देयर वुड बी सम पर्सन who कैन मेक ए मिस्टेक but not completely. Everyone can make mistake. So from this rule number 3, you have to understand कि हम इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। रूल नंबर 4, वुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जा सकता है। जैसे देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर शेड, यहाँ पर देखा जा रहा है कि कैन भी पॉसिबिलिटी के लिए, कुड भी, यहाँ तक कि मे का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, माइट का भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कैन का यूज करो तो यानी जो पॉसिबिलिटी है वो 90% है, और कोड की पॉसिबिलिटी 70%, मे का 50 और माइट का 25%, कुछ इस तरह सा पॉसिबिलिटी रहता है। ऑल दिस कैन, मे, माइट, ओके। सो देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर शीट। सो इससे हमने समझा कि कूट का भी प्रयोग हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पर पॉसिबिलिटी की जो संभावना है वो कम रहता है एज कंपेयर टू कैन। रूल नंबर 5, इट इज सेइंग कि कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्य में किया जाता है, एवं कुड औपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में। अब इसे हम इन आवर लैंग्वेज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रूल नंबर 5, कैन आई टेक योर स्कूटर, यानी हम फॉर्मल जगह पर, इनफॉर्मल जगह पर
इस वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपसे बड़े व्यक्ति के सामने एक कैन का प्रयोग ना करें, क्योंकि आप हम्बल का हम्बल वाली फीलिंग नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ एल्डर पर्सन. If you are sitting in a front in your in front of your friend, then you can use this can to show humble, not a humble, but yeah. Can I take your scooter? Could I talk to Mr. Shukla? Mr. Shukla. यहाँ पर इस रूल नंबर फिफ्थ में हम्बल जैसे फीलिंग. इस रूल नंबर 5 से हमें समझना है कि हम परमिशन ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग करके कैन और कुड का हम अपनी जो फीलिंग है वो ये बता सके कि हम आपसे नर निवेदन तरीके से बिहेव करें. ठीक. तो ये कैन कोड का यानी इस वर्ड का प्रयोग करके वो सामने वाला ये समझेगा कि हाँ, दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग एंग्री. ये तो समझेगा. आप ये रूल इज ओवर. एबल टू हम इसे बहुत यूज करते हैं इन आवर लाइफ. इवन आई यूज. सो एबल टू का मतलब होता है कि कोई चीज करने के लिए योग्य. जैसे यू आर एबल टू गो इन योर एग्जामिनेशन हो, यानी यू कैन गो. बट somehow somebody said कि this person can't come in this examination hall, then we say यार कि you are not able, you are not able to go in this examination. यानी आप उस कार्य के लिए सक्षम नहीं, तब हम एबल का प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन आई कांट बी एबल टू कम टुमारो, हम कैन के साथ एबल का प्रयोग नहीं करेंगे. यानी ये दोनों का मतलब एक ही हुआ. हम रिप्लेस करते हैं. अगर एबल का प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब हमने रिप्लेस किया किसे, कैन नॉट बी को. कैन बी को हमने रिप्लेस किया, यानी कैन बी कैसे किया, या फिर एबल टू, नॉट एबल टू, कांट बी, कांट, कैन नॉट, दोनों एक ही. यानी इसके साथ या तो आप डायरेक्ट ये बोले कि आई एम एबल टू कम टुमारो, या फिर डायरेक्ट ये बोले कि आई कैन कम टुमारो. दोनों एक ही. इन दोनों एक ही जगह पर यूज करना इट्स नॉट मेकिंग सेंस. कुछ इस तरह का कहा जा सकता है. नोट ऐसा करके हम अपने वाक्य को सुपरफ्लस बना देते हैं. सुपरफ्लस का अर्थ है मोर देन व्हाट इज नॉट, या ये हमें दिखाता है कि इट्स नॉट, या इट्स मेकिंग सेंस, लेकिन वो अननेसेसरी वाला फीलिंग आता है. दोनों का मीनिंग एक ही है. दोनों में से कोई भी एक का प्रयोग करें, या एबल टू का, या फिर कैन बी का, या फिर कैन नॉट बी का, या फिर नॉट एबल टू, है ना. यहाँ पर सुपर प्लसेस का मतलब है कि जो जरूरत है उससे ज्यादा हम सेंटेंस में दर्शा दे रहे हैं, क्या प्रयोग करें, तो हम उसे सुपर प्लसेस कहते हैं. इन वन वर्ड कहते हैं. इस वाक्य का सही सही फॉर्मेशन होगा आई कांट कम टू मैन, या फिर आई विल नॉट एबल टू कम टू मैन. दोनों ही की है. पर ये एबल टू को इसी में ऐड कर देना, दिस इज अ नॉनसेंस. ओके. नोट में क्या है, गुड से पास्ट या क्षमा व्यक्त की जाती है, परंतु कार्य का होना परफॉर्मेंस नहीं. ओके. क्या कहना चाह रहा, गुड से पास्ट. चलो ठीक. ठीक. आई कुड सिंग वेरी वेल when I was young and I was able to perform well. यानी मैं अच्छा सिंग करता था जब मैं यंग था. मैं उस टाइम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता था at the at the concerts. यानी एबिलिटी प्लस एक्शन इन द पास्ट, यानी पास्ट में एक्शन. लेट्स गेट अ मोर क्लैरिटी. In this sentence it is saying कि गुड से पास्ट क्षण
व्यक्त की जाती है परंतु कार्य का होना नहीं। लेकिन इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि आई कुड सिंग वेरी वेल, मैं अच्छा सिंग कर सकता हूँ, कर सकता था। व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल। यहाँ पर नेगेटिव वाक्य में कुड अथवा एबल टू में किसी एक का प्रयोग हो सकता है। ओके, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, नहीं बचा सकता। द डॉक्टर वाज अनएबल टू सेव द पेशेंट, दोनों एक ही। हम दोनों को रिप्लेस करके देखते हैं। द डॉक्टर इज एबल टू सेव द पेशेंट, द डॉक्टर was able to save the patient. Okay, okay. Both are same. Try to use one thing. Now let's see may, might एवं must. Must मतलब बहुत 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 ज्यादा समय। might मतलब बहुत 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 कम संभावना। मे का मतलब 50% संभावना। रूल नंबर वन है कि मे का प्रयोग संभावना अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इट मे रन टू नाइट, यानी हो भी सकता है वह शायद न भी हो सकता है। रोल नंबर टू है, मैं का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है, जहाँ पर हम कुछ इस तरह से अपना फीलिंग इमोशन को दर्शाते हैं। बा लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं, ताकि कोई भी अंडर एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि यस समबडी इज प्रेइंग प्रेइंग प्रेइंग। सो मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम बहुत ज्यादा जियो, कुछ इस तरह का ट्रांसलेशन होगा इन हिंदी में। तो ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हम डिजायर और इच्छा को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग कर सकते हैं, और वो सेंटेंस एक ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाता है। रूल नंबर थ्री है, यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सर्ब सब ऑर्डिनेट क्लोज, सब ऑर्डिनेट, ये एक सेपरेट चैप्टर है, बट राइट नाउ जस्ट वी आर गेटिंग एन आइडिया। जो दैट और सो दैट है, सो दैट ताकि, दैट की, इन ऑर्डर दैट से प्राम हो, इससे पर्पस, इससे पर्पस का बहुत हो, तो सब ऑर्डिनेट क्लोज में मे का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल से, लेट्स से ट्राई टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली व्हाट इज इट सेइंग, वी ईट सो दैट, हम लोग खाते हैं सो दैट वी मे लिव, सो दैट हम लोग जिंदा रह सकें, सो दैट हम लोग जी सके। दैट्स ऑल। यहाँ पर पर्पस जैसा फीलिंग, और यू कैन से पर्पस जैसा फीलिंग आ रहा है, जैसे हम कुछ कर रहे हैं ताकि कुछ हो सके, कुछ इस तरह, यानी हम वहां पर पर्पस को भी एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसे में हम मे का प्रयोग करते हैं। क्लियर। मार्ट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, इसके बाद बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होता है, और अगर कम पॉसिबिलिटी इफ यू आर शोइंग देन यू कैन यूज माइट। जबकि मे का प्रयोग मोर, मे के पास ज्यादा होता है लेकिन माइट से ज्यादा होता है, ना कि कैन से ज्यादा, ना कि कुड से ज्यादा, है ना। थोड़ा सा ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। He might pass the exam, but seeing his intelligence, I do not have much hope. वो कर सकता है, इसका प्रयोग करें, इसका मतलब हमने ये कहा कि उसको पास, एग्जाम पास करने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम पास कर सके। मैं उसका इंटेलिजेंस को देख कर बता रहा हूँ, लेकिन उसका इंटेलिजेंस को देख कर आई वुड से कि आई डो नॉट हैव मच उम्मीद, मेरे पास ज्यादा उम्मीद नहीं। रोल नंबर फिफ्थ इज, अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का पेपर है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा।
जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। अगर वो व्यक्ति फ्लाइट कर सकता है, ट्रैवल फ्लाइट में कर सकता है, 5 स्टार में जाके ईट कर सकता है, फूड ईट कर सकता है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यार ही विल बी वेरी रिच। और हम मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। पॉसिबिलिटी हम नहीं जानते कि सही में वो रिच है या नहीं, बस हम मस्ट का प्रयोग करके हम इस अंदाजा लगा रहे हैं कि वो जरूर रिच होगा। क्यों रिच होगा? क्योंकि वो ट्रैवल करता है फ्लाइट में, 5 स्टार में जाके वो रहता है, इसलिए। तो यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं कि हाँ, मेरे पास ये मोर पॉसिबिलिटी है कि वो रिच होगा, क्योंकि रीजन, दिस इज रीजन, दिस इज दिस रीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव मे का प्रयोग समान के साथ। इसे हम फॉर्मल जगह पर ज्यादातर यूज करते हैं, जहाँ वो व्यक्ति जो हमसे बड़े हो, जैसे हम एल्डर पर्सन कहते हैं, उसके सामने हम मे का प्रयोग कर देते हैं। जो व्यक्ति हमारे बराबर हो या हमसे कम हो, तब कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं एक कन्वीनियंस है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता था स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में। तो यहाँ पर हम टीचर, टीचर यानी बिग एल्डर पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं, ना कि कैन का। नॉट मे एंड माइट के साथ पॉसिबिलिटी एवं लाइकली का प्रयोग ना करें। पॉसिबली, पॉसिबली लाइकली, क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं। वी मे पॉसिबली कम टुमारो, इट्स अ कंप्लीटली पॉसिबली। आप डायरेक्ट यूज करें वी मे कम टुमारो, वी विल पॉसिबली कम टुमारो। आप मे के साथ पॉसिबली ना यूज करें तो उचित रहेगा। Now next auxiliary verb which is shall will, हम इसे विदाउट मॉडल auxiliary verb भी यूज करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? रोल नंबर 1 है shall का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, जैसे आई वी है, इसके साथ हम shall का प्रयोग करते हैं फ्यूचर के किसी कार्य के व्यक्त करने के लिए। बाकी इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हम उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम फिर भी यूज करते हैं विल किसके साथ? आई और वी के साथ, तो भी ये करेक्ट ऐसा माना गया। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी। तो इस रूल नंबर से हमें ये समझना है कि जो आई वी है, इसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स है उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। इस रूल नंबर 1 से हमें कन्विंस होना, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मॉडर्न इंग्लिश में हम आई एंड वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, जो अब स्वीकार है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई एंड वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, उसे नेगेटिव सेंटेंस चलेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस चलेगा, लेकिन इंटरोगेटिव में जैसे विल आई गो, शैल आई गो चलेगा, लेकिन विल आई नो। ये मॉडर्न इंग्लिश में अभी ऐसा नहीं आया कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ शैल का प्रयोग करें, ये आया है, बल्कि ना कि विल का प्रयोग करें। ओके, आप यूज कर सकते हैं विल का प्रयोग, लेकिन कब? जब आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव ना हो। जब आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है और आई वी के साथ आप विल का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अभी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश के लिए, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ कल आप। ओके, नेक्स्ट नोट है कि शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू है, यानी ये तो सेकेंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के साथ कमांड, प्रॉमिस, क्रिएट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, एडवाइस के लिए किया जाता है। अगर ये सब आ रहा है, जैसे कमांड कोई दे रहा है, प्रॉमिस कोई कर रहा है, क्रिएट कोई दे रहा है, डिटर्मिनेशन के साथ है, कंपल्शन है, एडवाइस दे रहा है, तो हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार के वाक्य में विल का प्रयोग है। इसी प्रकार के वाक्य में विल का प्रयोग
आई एंड वी के साथ होता है। चलो एग्जाम्पल के साथ थोड़ा क्लियर होते हैं। यू शैल लिव, हम जानते हैं कि यहाँ पर ना तो आई है ना ही वी है, तो शैल कैसे? क्योंकि ये कमांड दिया है। कमांड, यू शैल लीव द रूम एट वंस, एक बार तुम्हें रूम छोड़ देना चाहिए, यानी ये एक आदेश है। और नेक्स्ट वी हैव प्रॉमिस, यू शैल बी रिवॉर्डेड, यू शैल बी रिवॉर्डेड, यानी ये एक प्रॉमिस है मेरी तरफ से कि तुम्हें रिवॉर्डेड जरूर किया जाएगा। आई विल हेल्प यू कम, आई विल हेल्प यू कम वर्ट में, जो भी हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ आने में। तो ये वादा है, ये भी एक तरफ से वादा की तरह बिहेव हो रहा है, दिस इज थ्री के। इसमें भी देख सकते हैं ओवरऑल जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर ये कमांड प्रॉमिस थ्रेट डिटरमिनेशन कंपल्शन अदरवाइज ऑल दिस आर कमिंग देन वी कैन यूज जस्ट शैल का प्रयोग। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। if you are understanding this for us speaking then you can use whatever यार shall और will सब वैलिड है। बस कन्विंस हो जाना चाहिए वो अगला पर्सन आपकी बात को समझ सके, दैट्स इट। शैल और विल दोनों का मीनिंग एक ही होता है इन आवर इंग्लिश और इन हिंदी। लेकिन जब बात आता है एग्जाम्स के पर्पज से थोड़ा सा कंफ्यूजन विल रिमेन या विल रिमेन। नॉट डिटर्मिनेशन का एग्जांपल है आई विल वर्क हार्ड, मतलब मैं करूंगा तो करूँ, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, ये है डिटर्मिनेशन। मैं इस बात पर अटल रहूंगा, टिका रहूंगा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेशन। कंपल्शन का मतलब अनिवार्यता और यू कैन से मजबूरी। यू शैल बी हियर बिफोर 5 p.m. फॉर द मॉर्निंग, एक तरफ से कह सकते हैं कि मजबूरी है, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, ये भी मजबूरी की तरह एक बिहेव कर रहा है, दिस इज सेंटेंस। तो कंपल्शन को हम अनिवार्यता भी कह सकते हैं और उसे हम मजबूरी भी कह सकते हैं। तो हमने ये सब देखा कुछ एग्जांपल्स के साथ। और नंबर 2 है लेटस। देखो हम लेटस को इन शॉर्ट में हम इस तरह से भी लिखते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। डोंट अंडरस्टैंड कि बहुत आर डिफरेंट, बहुत आर सेम। सो लेटस या फिर लेट्स से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस या ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्रिएट करके देता है, प्रोड्यूस करता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग्स में भी शैल का प्रयोग होता है। जैसे हमारे पास आ गया एक इंपेरेटिव सेंटेंस, लेट अस डांस टुगेदर, ये तो यहाँ तक इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसके बाद अगर क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है तो हम शैल भी का प्रयोग करेंगे। ये नहीं, रिमेम्बर, हम ये नहीं कह रहे कि जो भी है इंपेरेटिव सेंटेंस उसके बाद क्वेश्चन टैग के लिए शैल का प्रयोग करें, नहीं। यहाँ लेट अस के साथ अगर इंपेरेटिव सेंटेंस क्रिएट हो रहा है तब हम शैल को एज अ क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ओके। रूल नंबर 3 है कि शैल का प्रयोग सजेशन सजेशन के लिए भी किया जा सकता है। पहले वाले इंटेग्रेटिव सेंटेंस फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी शैल वी टॉक टू मैनेजमेंट, वी टॉक टू मैनेजमेंट और शैल शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हम मैनेजमेंट के लिए, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इट सेइंग। यहाँ से सिर्फ यह समझना है। नेक्स्ट नोट है कि शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो। क्योंकि हम जानते हैं कि शैल का जो कंप्लीटली काम है वो फ्यूचर के लिए अगर हम पास्ट को दर्शाना चाहते हैं तो हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ये वुड है जो कि पास्ट के लिए यूज किया जाता है और ये जस्ट ये रिप्लेस करता है इसको शैल और विल को, जस्ट टू शो पास्ट नेक्स्ट टाइम। ही होप्ड यहीं से हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये पास में जा रहा है, उसने उम्मीद किया कि ही वुड पास द टेस्ट, वो टेस्ट पास कर जाएगा, यानी ये कुछ पास्ट में बीता।
पास्ट में ही एक पर्सन ने प्रिडिक्ट किया कि वो व्यक्ति टेस्ट में पास कर जाएगा। यहाँ पे भी पास्ट में भी एक फ्यूचर आ रहा है। उस पास्ट में एक फ्यूचर जो आ रहा है उसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जो काम हो गया है ना, दोबारा मतलब नहीं होगा आने वाले फ्यूचर में। पास्ट में जो एक फ्यूचर होता है उसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, जैसे यहाँ पर ये वाक्य है, ये पास्ट से शुरू हुआ, तो विल शैल नहीं बल्कि वुड शुड का प्रयोग होगा। ही शुड पास। ओके, शुड भी वैलिड है, लेकिन शुड ये नहीं बताता है कि कर लेना चाहिए। हम जो सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो पास्ट स्टार्ट हो तो वहां से हम पूरी तरह से समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट बता रहा है, तो आपको हमें वर्ड का प्रयोग करना चाहिए ना था। इफ यू आर यूजिंग शुड, इट इज ओके। ओके, यू कैन यूज। दरअसल ये नियम तब भी लागू होता है जब विल शैल के स्थान पर कोई और मॉडल या वर्ब का प्रयोग हुआ हो। यानी तब भी लागू, जैसे हम ये जो विल है शैल को रिप्लेस कर दिए किससे, शुड से, जो कि शुड एक मॉडल वर्ब है, तो ये वायलट है। और यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन आया जो ये कहना चाह रहा है कि आप विल और शैल को रिप्लेस कर सकते हैं मॉडल वर्ब से, तब भी ये वैलिड। देखें हम, इससे हम यहाँ समझ रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट से स्टार्ट हुआ। He said that he is coming. He was coming. पास्ट में चला गया तो इसे वो पास्ट में भी रखना पड़ेगा, है ना। ये पास्ट में चला गया यानी स्टार्ट ही पास्ट से हुआ, तो खत्म भी पास्ट से होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। He hoped, यहाँ भी पास्ट में चला गया। यह नियम तब लागू नहीं होता जब वाक्य सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी तरह से सच हो। पूरी यूनिवर्सल में, यूनिवर्स में ही सच, एक्चुअल एक एक्शन, एक्शन मतलब हैबिट से जो एक्शन हो, आइडियम या फ्रेज हो, तब ये लागू नहीं होता। जैसे ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, ये करेक्ट करेक्ट है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है, यू कैन से। आवर टीचर टोल्ड अस दैट होनेस्टी इज द बेस्ट प्लेस, ये भी करेक्ट। क्योंकि क्योंकि ये हैबिचुअल हैबिचुअल एक्शन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हैबिचुअल एक्शन है, पर ये कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, होनेस्टी इज द बेस्ट प्लेस। यहाँ पर हम इस को पास्ट के रूप में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हाउएवर हाउएवर ये जो सेंटेंस है वो पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, पास्ट को व्यक्त करते हुए स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि ये जो है, ये यूनिवर्सल फैक्ट हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे द सन वाज ए स्टार, ये अभी भी स्टार है यार, द सन इज राइट नाउ इज अ स्टार। सो अगर हम ये कहते हैं कि ही सेड दैट द सन वाज अ स्टार, ये सेंस नहीं बन रहा, इट्स नॉट मेकिंग सेंस, दैट्स ऑल। ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड, जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे इन योर लैंग्वेज, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट मेकिंग सेंस, नॉट एट ऑल, या। अच्छा, नेक्स्ट। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, भविष्य में यानी इन फ्यूचर में एक काम फिर उसके बाद एक और काम, और दूसरा कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, यानी पहला कार्य होगा फ्यूचर में तब दूसरा कार्य होगा, तो पहला कार्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी पहला, ठीक है, दोनों फ्यूचर है, लेकिन पहला को हम एज अ सिंपल प्रेजेंट करेंगे और दूसरा को हम सिंपल फ्यूचर कर देंगे। हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में उपयोग कर लेते हैं। हमारी ये जो आदत है हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की, ये एक तरह से इनेमी है, ये हमें, अच्छा, इसे फिर किसी पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि हम जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारी आदत होती है कि जो फर्स्ट है उसे भी हम सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में नहीं होता है ऐसा। अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, ये हिंदी है ना, ये तो ठीक है, दोनों फ्यूचर जैसा ही बिहेव हो रहा है। मैं आऊँ,
इफ आई विल कम आई विल मीट यू, ये गलत जैसा है, ये गलत होगा। इफ आई विल कम, इफ आई कम, ये ठीक है थोड़ा। इसे हम कहते हैं कि, या इट्स अ स्टैंडर्ड सेंटेंस। इफ आई कम यानी अगर मैं आता हूँ, आई विल मीट यू। इफ आई विल कम आई विल मीट यू, दोनों एक जैसा लग रहा है, मैं मानता हूँ दोनों एक जैसा लग रहा है। लेकिन एक एज अ रूल, और यू कैन से यार कि एक स्टैंडर्ड के लिए हम ये लेके चलेंगे कि ठीक है, दोनों काम फ्यूचर में हो रहा है। जैसे आई कैम, आई कम, ये भी फ्यूचर में होना है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं आता हूँ, यानी अगर मैं फ्यूचर में आता हूँ, मैं तुमसे मिलूँ, आई विल मीट यू। ये भी हो सकता है कि मैं ना आऊँ, नहीं मिलूँ, आई विल नॉट मीट यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो दोनों सेंटेंसेस है वो फ्यूचर में एक्ट हो रहा है ना, फ्यूचर में एक्ट। तो rather than saying कि I if I will come I will meet you, डायरेक्ट से कि if I come I will meet you, डायरेक्ट से। इन दोनों को फ्यूचर में डोंट कन्वर्ट, या डोंट कन्वर्ट दिस फर्स्ट सेंटेंस इनटू इनटू व्हाट है, इनटू फ्यूचर। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसे आप सिंपल प्रेजेंट में रहने दें और सेकंड को फ्यूचर में ही करें। ये तभी वैलिड है जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर में हो। दोनों सेंटेंस फ्यूचर में, निम्नलिखित शब्दों को देखो, देखें, निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता। एक मिनट, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। इफ, एज सुन एज, यानी ये जो कुछ वर्ड्स हैं, इनके बाद डायरेक्ट फ्यूचर पे नहीं जंप करने का, बल्कि प्रेजेंट से स्टार्ट करने का। इफ, एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके। इन केस, प्रोवाइडेड, बशर्ते, अनलेस, अनटिल, जब तक ये ना हो तब तक वो, वगैरह वगैरह, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। इसके बाद अगर दो सेंटेंस हैं जो कि दोनों फ्यूचर के ये परफॉर्म होने जा रहे हैं, तो हम फर्स्ट को एज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस में परफॉर्म करेंगे, और सेकेंड जो है वो फ्यूचर में रह जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे। नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड, रोल नंबर वन वर्ड का, या इसे हम रिप्लेस करते हैं, किसे रिप्लेस करते हैं, विल और शैल को रिप्लेस करते हैं। इसे पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए क्या था, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मजा आता। लेकिन याद रहे, हमें पास्ट को दर्शाने के लिए कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस को यूज करना होगा, तो इससे हम समझ सके कि हाँ, तुम पास्ट में गए हो। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। रूल नंबर टू है कि वर्ड का प्रयोग प्रेफरेंस, चॉइस, जैसे आई वुड लाइक टू ate this thing which was my favorite but right now it's not my favorite। कुछ इस तरीके से चॉइस हो। सामान्यतः ऐसे वाक्य में rather का भी प्रयोग होता है। I would rather like that, यानी यहाँ पर ये ये होगा, ये नहीं होगा, मतलब एक चीज हो। तब rather में देखो, दोनों विकल्प का उल्लेख हो तो ध्यान का प्रयोग भी हो। यानी देखो, he would rather die, यानी भीख मांगने से अच्छा है कि वो मर जाता। He would rather die than beg, beg मतलब भीख मांगना, die मतलब भीख मांगने से अच्छा है, यानी than beg, है ना। I would rather take tea, मैं टी लेना चाहूंगा। I would rather, मैं टी लेना चाहूँ। then जैसे I would explain, hold on, I would rather explain than writing on the board, like that, यानी बोर्ड पर लिखने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करूँ कुछ इस तरह। अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो तो वाक्य आगे पास्ट नहीं रहेगा, विल का पास्ट हो जाएगा वुड। जैसे ये स्टार्ट हुआ पास्ट से तो आगे भी पास्ट ही रहेगा बाबा। बस कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड ये है कि ना ही यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, ना ही एक्चुअल एक्शन होना चाहिए। रूल नंबर फोर है कि वर्ड यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी हम वर्ड को हम पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं,
पर यूज टू डू को भी हम पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। समझे? यानी रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए इसे प्ले किया जाता है और इसे हमें करना भी है। जैसे एग्जाम्पल से कुछ, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। मैं बस के द्वारा स्कूल जाया करता था। आई वुड रिटर्न ऑन फुट। मैं फुट पर वापस आता था। कुछ इस तरह से समझना। वी प्लेड। अब यहाँ पर क्या है कि ये यूज टू डू है, ठीक है, फिर दोबारा यूज करेंगे, फिर दोबारा यूज करेंगे। ये है बहुत फीलिंग वाला काम है। तो हम ये तीनों को डिफरेंट तरह का डिफरेंट यूज कर सकते हैं और तीनों का मीनिंग एक ही होगा। आई वुड रिटर्न ऑन फुट। वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रनिंग रिटर्निंग होम। यानी घर लौटने से पहले हम खेला करते थे 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा। तो ये जो तीनों है वो रूटीन ही बता रहा है और ये पास्ट में जो हुआ है वो है बता रहा है ना। पास्ट हैबिट है। चलो रूल नंबर 5 है वर्ड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के एक कल्पना को व्यक्त करने के वाक्य में प्रिंसिपल क्लोज में होता है। इफ आई वर ए बर्ड, यानी मैं ये होता तो ये करता। जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। लेकिन ये क्या है कि ये होगा नहीं, नहीं होगा नहीं, वो बात नहीं। ये बस एक कल्पना है, कल्पना। उसे क्या कहता है, हैप्चुअल। आई डोंट नो इन इंग्लिश। हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि यार मैं ये होता, अगर वो ये होता, अगर इसकी जगह ये होता तो ऐसा होता वैसा होता, लेकिन हुआ नहीं ना, हुआ नहीं। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर सिर्फ इमेजिन, क्योंकि ये तो होना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती है कि वो हो सकता है लेकिन हुआ नहीं, है ना। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मुझे कुछ नोट है। अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सब्जेक्ट के साथ, इन्हीं सब्जेक्ट के साथ वर्ग का प्रयोग करें। जैसे आई, पर विम्बर, विम्बर। आई के साथ तो ठीक है वर्ग का, लेकिन ही के साथ क्या हो, शी के साथ क्या हो, उसके साथ क्या होगा। आई विश, काश में एक वर्ड। इफ आई वर यू, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम। मैं उस पर कभी भी विश्वास करता, कभी नहीं विश्वास करता। कुछ इस तरीका से, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का मीनिंग इस सेंटेंस का, इफ आई वर यू। यहाँ समझने वाली बात है कि आई वाज, यहाँ वर की जगह वाज होना चाहिए। ये वर क्या है, क्योंकि ये बताएगा कि आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन के बारे में सोच रहे हैं। अगर वाक्य पास्ट से संबंधित हो तो हैड बीन का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस का फॉर्मेशन भी अलग होगा। इफ आई हैड बीन ए डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर रहा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड देम, मैं उन्हें उन्हें हेल्प किया हो। अगर मैं डॉक्टर होता, हुआ होता, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं उनकी हेल्प किया होता, अभी तक हेल्प किया होता। एक हैड बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों में ये देखा जा रहा है कि दोनों का नहीं हो, सिर्फ काल्पनिक है, सिर्फ काल्पनिक। I hope till here this is enough. This is enough. I am closing it. Closing it.